Hey everyone, welcome to Employability Skill Series, and we are on video number 2 that is based on your self-management. So this video is important for class 10th standard student who have taken AI or IT or any other skill subject. So today we are going to discuss about that self-management skills, and I didn't made any PowerPoint presentation and directly going to use book so that you can read the book with me. Okay, so this is your first page of unit number 2, that is your self-management skill, and in this the important thing is your this introduction part. Okay, what is that self-management? So self-management also referred as your self-control. Okay, self-management is what? Self-control. Okay, so self-management also known as your self-control is ability to control one's emotion, thought and behavior effectively in different situations. So this is your what is self-management. Okay, and from this lesson generally 2 marks question will be coming, and mostly objective type questions will be coming from this lesson. So moving on to the next page. Okay, now how following are some skills you must master to succeed in your life, and that are your self-awareness, responsibility, time management and adaptability. Okay, 4 things are there: self-awareness, responsibility, time management and adaptability. Okay, now what is self-management here? Self-awareness here. So self-awareness means your honest feedback to yourself. Okay, you are knowing about your personality. Be honest with yourself. Second is your responsibility. If you are taking responsibility, if you are taking accountability for doing any work, that is your taking responsibility. Okay, and if you are taking responsibility, you will definitely succeed in your life. Third is your time management. It is very important thing how to manage your time, and how we can manage our time. Before doing any work we have to plan it. Okay, that is your time management. And your adaptability, that is means your current stay current with the best practices and read up the new information always. Prepare yourself for new changes and also challenges. So that is your adaptability, how adaptable you are to that environment. So these are the 4 things how to master or succeed in your life. Okay, then what is stress? Okay, here the what is stress? तो stress यहाँ पर ये एक चीज important आती है. What is stress? Stress can be defined as our emotional, mental, physical and social reaction to any perceived demands or threats. ठीक है, now these demands, okay, these demands are known as your stressor. So what is stress? Stress means our emotional, mental and physical social reaction. Okay, our reaction towards any event. Okay, when any event occur and we are going to react on that, and how we are going to react on that? Maybe you are emotionally reacting, maybe you are mentally taking stress, mentally reacting, maybe physically आपने कोई fighting वगैरह कर दी, या maybe social reactions you are going to give any type of comments. That means your stress. ठीक है, and these demands और threats are called stressors. ठीक है, ये जो situations आती हैं that are known as your stressor. Moving on to the next page. अच्छा, ये स्ट्रेस भी जो है, क्या आपको लगता है कि हम में से कोई भी बिना स्ट्रेस के रह सकता है? नो, स्ट्रेस रहने ही वाला है आपकी लाइफ में. एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. वन इज योर यू स्ट्रेस. ओके, वन इज योर यू स्ट्रेस means your good stress. Okay, and second is your distress, which is your bad stress. Okay, now what is that your you stress? You stress is your good stress. इस पर क्वेश्चंस आते हैं कई बार. Okay, and distress means your bad stress. So you stress means your good stress,
एंड दिस स्ट्रेस मीन्स योर बैड स्ट्रेस। तो अपनी लाइफ में, हमारी लाइफ में कहीं भी स्ट्रेस रहने ही वाला है, वी हैव टू मैनेज दैट स्ट्रेस, ठीक है। नाउ व्हाट इज दैट गुड स्ट्रेस? इफ यू आर मोटिवेटिंग टू डू एनीथिंग, जैसे आपने सोचा है कि मुझे आज रात में पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट ही करना है, तो यू आर इन स्ट्रेस बट यू हैव डन इट एंड देन यू विल बी फीलिंग प्राउड कि हाँ मैंने एक रात में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, दैट इज योर गुड स्ट्रेस, ठीक है। इसी की जगह डिस स्ट्रेस, आपको ये काम करना ही नहीं है बट आपसे जबरदस्ती कराया जा रहा है और आपने कुछ ऐसा टेंशन ले लिया उससे, दैट इज योर डिस स्ट्रेस। ओके, नाउ व्हाट इज दैट स्ट्रेस मैनेजमेंट? स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो यू हैव टू नो अबाउट दैट ABC ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। ABC ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज दैट ABC ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट? तो A इज योर एडवर्सिटी और स्ट्रेसफुल इवेंट, ठीक है। A इज योर एडवर्सिटी और स्ट्रेसफुल इवेंट। तो A आपको ध्यान रखना है कि जब स्ट्रेस का इवेंट हुआ, दैट इज योर A। सेकेंड इज योर बिलीव, B इज योर बिलीव और द वे टू रिस्पॉन्ड टू इवेंट, ठीक है। जैसे ही आपका कोई स्ट्रेसफुल इवेंट होता है, हाउ यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड, हाउ यू आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन दैट सिचुएशन। एंड द थर्ड थिंग इज योर कॉन्सिक्वेंसेज, मीन्स आफ्टर इफेक्ट्स और द एक्शंस और द आउटकम्स ऑफ दैट इवेंट। So we have to think about that event. What is that stress management? So we have to think about, yes, जब भी stress आएगा we have to think about three things, A, B, C. What is your event? How you are going to react on that event and what will be the outcomes or the consequences of that event. So A, B, C is your stress management. Okay. Then ऐसा कभी कभी क्वेश्चन आता है, हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज योर स्ट्रेस? तो द थिंग्स आर रिटन, बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस, सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए। आइडेंटिफाई व्हाट इज कॉजिंग योर स्ट्रेस, ठीक है। वी हैव टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेसर, देन अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड, ठीक है। जैसा भी स्ट्रेस है उसके अकॉर्डिंग हमको स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड को अप्लाई करना है, ठीक है। देन योर टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स, ठीक है, कैसे हम मैनेज करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज योर टाइम मैनेजमेंट, फर्स्ट थिंग इज योर टाइम मैनेजमेंट। ओके, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होगा तो स्ट्रेस आने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इज इफेक्ट स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक। ओके, सेकंड इज योर फिजिकल एक्सरसाइज एंड द फ्रेश एयर, ठीक है। जब भी आपका कुछ मूड बहुत खराब है, आप स्ट्रेस में हो, तो आपको या तो फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हो, आप डांस कर सकते हो, या फिर आप फ्रेश एयर में जा सकते हो, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ओके, थर्ड इज योर हेल्दी डाइट। Healthy diet is very essential in your stress management. If you are taking healthy diet, your body will support to reduce your stress. Okay, then next is your positivity. Always be positive, ठीक है। Focus on the negative aspects of the life will add more stress. Instead, look at the good things and stay positive. For example, instead of feeling upset over the scoring less in the test, try to maintain a positive attitude and look at the way to improve the next time, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को किसी भी मामले में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड इफ यू आर मैनेजिंग योर स्ट्रेस, यू आर एबल टू सक्सेस इन योर लाइफ। ओके, नेक्स्ट। हाँ, अब यहाँ इस पेज में इम्पोर्टेंट थिंग है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज वंस ओन इमोशन, ठीक है। हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर पाए, आइडेंटिफाई एंड मैनेज आवर ओन इमोशंस, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करना है हमें? आइडेंटिफाई करना है एंड मैनेज करना है। ओके, वी हैव टू आइडेंटिफाई आवर इमोशंस and manage our emotions. Okay, so how to do that? Emotional awareness, ठीक है, self awareness is must. Then you are harnessing emotions, ठीक है, how to control that emotions. Then managing emotions means ability to regulate one's emotions with and help others to do the same. ओके, नेक्स्ट। ओके, यहाँ इस पेज पर ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है।
इसलिए मैं बुक खोलकर आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ कि इजीली रिवीजन हो जाए। यहाँ भी कुछ ऐसा दिया नहीं है। ये हाँ, नोइंग, हाँ यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ आपका, डिस्क्राइब स्ट्रेस, ठीक है, व्हाट इज स्ट्रेस, देन स्ट्रेस मैनेजमेंट इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। तो फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन स्ट्रेस, ठीक, व्हाट इज स्ट्रेस, योर रिएक्शन टुवर्ड्स द सिचुएशन, ठीक, दैट इज योर स्ट्रेस, ठीक, योर इमोशनल थॉट्स प्रोसेस एवरीथिंग इज योर स्ट्रेस। देन लिस्ट योर फेवरेट स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, ठीक, क्या क्या हो सकती हैं आपकी, हो सकता है लिसनिंग म्यूजिक इज योर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, ईटिंग गुड फूड इज योर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, हो सकता है वॉचिंग मूवी इज योर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, हो सकता है कि आपका ब्रिस्क वॉकिंग इज योर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, योगा इज योर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। सो देर आर n number of stress management techniques, okay, then हाँ, we have to analyze the things, strength and weakness analysis, ठीक है, strength and weakness analysis जिसको हम कभी कभी SWOT analysis भी बोलते हैं, ठीक है। now how to identify what are the strength and what are our weakness, ठीक। तो नाउ हाउ टू फाइंड योर स्ट्रेंथ, ठीक है, आप अपनी स्ट्रेंथ को कैसे फाइंड करोगे, कैसे पता लगेगा आपको कि ये स्ट्रेंथ है आपकी, ठीक। तो फर्स्ट थिंग, थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज सक्सेसफुल एट, ठीक है, आपको ऐसी किसी चीज के बारे में सोचना है जो काम आपने किया और वो सक्सेसफुल हो ही गया, ठीक है, तो वो आपकी क्या हो गई, स्ट्रेंथ हो गई, ठीक। यू हैव टू थिंक अबाउट द वर्क you are always successful at, or you are enjoying that work, you are able to complete that work. Second thing, think about what others like in you, ठीक है, दूसरों को क्या चीज आपकी अच्छी लगती है, कौन सा ऐसा काम आप करते हो जिससे दूसरों की तारीफ मिलती है, that is your strength. Take out the time and think about what you do well, ठीक है, आप क्या अच्छे से कर सकते हो, it depends on you. So 3 techniques are there to identify your stress, your strength. And how you are going to identify your strength, you have to think what others likes in you, you have to think what you are successful, in which work you are always successful, and third is your time, take out the time to think about what you do well, okay. फाइंडिंग वीकनेस, अब वीकनेस कैसे फाइंड करेंगे आप, वीकनेस को फाइंड करने के लिए वेरी इजी थिंग, पॉइंट आउट द एरियाज वेयर स्ट्रगल, ठीक है, हमें ऐसी चीजों को खोजना है जहां हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमें बहुत परेशानी होती है, बहुत स्ट्रेस होता है उस काम करने के लिए, तो दैट इज योर वीकनेस, ठीक है। लुक एट द फीडबैक अदर्स यूजुअली गिव्स यू, उस काम को करने के बाद आपको तारीफ भी नहीं मिल रही है, सबने बुला रही है, तो काम ही आपने बिगाड़ दिया, बहुत ही खराब कर दिया, दैट इज योर वीकनेस, ठीक है। बी ओपन टू फीडबैक, हमेशा दूसरों से हमें फीडबैक लेना चाहिए, एंड एक्सेप्ट अवर वीकनेस, ठीक है, हमें अपनी वीकनेस को समझना चाहिए कि हाँ ये हमारी वीकनेस है, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज योर व्हाट इज इंटरेस्ट एंड व्हाट इज एबिलिटी, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, ठीक है, इंटरेस्ट वो होता है जिसे करने से मुझे खुशी मिलती है, एंड एबिलिटी वो होती है जो मेरी नेचुरल कैपेसिटी है, एंड आई कैन डू इट वेरी वेल, ठीक है। लाइक मेरा इंटरेस्ट है कि मुझे गाना गाना है, तो दैट इज माई इंटरेस्ट, बट आई एम नॉट एबल टू सिंग अ सॉन्ग प्रॉपरली, ठीक है, मेरे अंदर सुर ताल कुछ भी नहीं है, तो दैट इज माई इंटरेस्ट, ठीक है। एबिलिटी, हाँ ठीक है, मुझे पढ़ाने में भले ही मेरा उतना एबिलिटी है, मतलब मैं अगर किसी बुक को खोलकर बैठूं तो आई कैन एक्सप्लेन दैट थिंग, तो दैट इज माई एबिलिटी। तो अब मुझे क्या बनना चाहिए, गायक बनना चाहिए या टीचर बनना चाहिए, गाना मेरा इंटरेस्ट है एंड टीचिंग मेरी एबिलिटी है, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन योर इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, ओके, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट थिंग। नेक्स्ट, this is your activity page, nothing is important in that. Yes, here one activity is there, identify your strength and weakness, okay. Session 3, ठीक है, 5 ही सेशन है इसमें, सेशन 3 इज योर सेल्फ मोटिवेशन, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। सेल्फ मोटिवेशन, व्हाट इज दैट सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है,
Self motivation means you're simply the force within you, simply the force within you that drive you to do the things. ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन क्या है? इट इज द सिंपली फोर्स विद इन यू दैट ड्राइव्स यू टू डू द थिंग्स. ठीक है, आपको खुद ही कुछ काम करने के लिए प्रेरित करता है. ठीक है, आपको प्रेरणा देता है कि नहीं मुझे ये काम करना ही है. दैट इज योर सेल्फ मोटिवेशन. ओके, सेल्फ मोटिवेशन. ओके, नाउ टाइप ऑफ मोटिवेशन. तो टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन. वन इज योर इंटरनल मोटिवेशन, सेकंड इज योर एक्सटर्नल मोटिवेशन. इंटरनल मोटिवेशन क्यों होता है आपका? बिकॉज ऑफ दैट लव. ठीक है, यू आर हैप्पी टू डू दैट थिंग, दैट्स व्हाई यू हैव डन दैट. ठीक है, दैट इज योर internal motivation. And the external motivation, you are doing it for getting the rewards. ठीक है, you are doing it for getting the rewards. So that is your external motivation. ठीक है, two types के motivation है. One is your internal motivation, the things you do because of the love, because of the happiness. That is your internal motivation. The things you do because of that rewards you are getting, that is your external motivation. ठीक है, okay. Now what are the qualities of self motivated people? ठीक है, know what they want from their life, are focused, know what is important, are dedicated to fulfill their dreams. ठीक है, how to build self motivation? सबसे पहला चीज है find your strength. सेल्फ मोटिवेशन बनाने के लिए find your strength. ठीक है, then set फोकस ऑन योर गोल. ठीक है, आपको एक गोल सेट करना है, उसके ऊपर फोकस करना है. डेवलप अ प्लान टू अचीव दैट गोल एंड स्टे लॉयल टुवर्ड्स योर गोल. ठीक है, क्या करना है हमें? पहले स्ट्रेंथ को फाइंड करना है, स्ट्रेंथ के बाद फोकस करना है गोल्स के ऊपर, देन योर प्लान बनाना है और उस प्लान पर आपको अडिग रहना है यानी लॉयल रहना है टुवर्ड्स योर गोल. अगेन एक्टिविटी पेज. ये लेसन बहुत थोड़ा छोटा ही है. ठीक है, अब आ जाते हैं एमसीक्यू पर. व्हाट मेक्स यू टू कंप्लीट वर्क और स्टडी विदाउट अदर्स चीयरिंग यू? दैट इज योर सेल्फ मोटिवेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ मोटिवेशन? इंटरनल, एक्सटर्नल. ठीक है, इंटरनल इज योर फॉर लव एंड एक्सटर्नल इज फॉर योर रिवॉर्ड. ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछते हैं इसलिए लिख दिया मैंने. Ravi works hard to get the best student award at the end of the year. What type of motivation is this? That is your external motivation. Moving on to the next page. हाँ, अब इस पेज में सबसे इम्पोर्टेंट है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं आपके. सेट गोल्स. हाउ टू सेट गोल एंड फॉर सेटिंग द गोल द कीवर्ड इज योर स्मार्ट गोल. ठीक है, स्मार्ट गोल. ये आपको इसका फुल फॉर्म याद करना है. स्मार्ट गोल. ठीक है, स्मार्ट गोल इज योर फर्स्ट इज योर एस स्टैंड्स फॉर योर स्पेसिफिक. ठीक है, सेकंड इज योर मेजरेबल. नाउ व्हाट इज दैट स्पेसिफिक गोल? सो स्पेसिफिक मीन्स योर क्लियर गोल. व्हाट क्वेश्चन यू हैव टू आस्क फ्रॉम योर सेल्फ? हु इन्वॉल्व्ड इन दिस गोल? ठीक है, हु इन्वॉल्व्ड इन दिस गोल? देन व्हाट डू आई वांट टू डू? Where do I start? When do I start and finish? Which means do I use? Why am I doing this? ठीक है, तो you have to ask these questions and your goal should be specific. Next is your measurable. ठीक है, measurable means you have to answer the things that. Okay, next is your measurable. Measurable goal means your answer the question how much, how to measure it. कितना चाहिए हमें measure करने के लिए. That is your measurable. Then the next is your achievable. ठीक है, achievable. So achievable के लिए always breaking down big goals into smaller parts. ठीक है, इस पर क्वेश्चन आते हैं. breaking down big goals into smaller parts. किस इसमें आता है आपका? तो अचीवेबल. ठीक है, स्मार्ट गोल में से किस में आपका स्मॉल गोल्स में ब्रेक करना आता है? तो स्मार्ट गोल्स में से अचीवेबल इज योर ब्रेकिंग डाउन बिग गोल्स इनटू द स्मॉलर पार्ट. ठीक है, देन
रियलिस्टिक, नेक्स्ट इज योर रियलिस्टिक, ठीक है। गोल शुड बी रियलिस्टिक, ऐसा होना चाहिए जो अचीव कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई सपनों की दुनिया में ही हम अपने इसमें चल रहे हैं, ठीक है। जैसा हमने बोल दिया हाँ हम तो एक दिन में पूरा सिलेबस कर लेंगे, दैट इज नॉट रियलिस्टिक। हाँ अगर मैंने बोला कि मैं 1 घंटे में 1 लेसन करने की कोशिश करूंगा, दैट इज योर रियलिस्टिक, ठीक है। देन योर टाइम बाउंड, टाइम बाउंड, सो स्मार्ट गोल शुड हैव टाइम फ्रेम, ठीक है, टाइम फ्रेम व्हेन गोल नीड्स टू बी अचीव, दिस एनकरेजेस टू टेक एक्शंस कंप्लीटली टू फुलफिल द गोल, ठीक है। नॉट अ टाइम बाउंड गोल, आई वांट, अब देखो एग्जांपल दिया है, नॉट अ टाइम बाउंड गोल, आई वांट टू लूज 10 kg समडे, ठीक है, समडे, अब ये समडे कभी आने भी वाला है क्या, इसी की जगह है जो टाइम बाउंड है, आई वांट टू लूज 10 kg इन नेक्स्ट 6 मंथ, तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट 6 मंथ टाइम बाउंड आ गया, ठीक है। तो हमें हमेशा हमारे गोल को कैसा रखना है, स्मार्ट गोल, ठीक है। स्मार्ट गोल मीन्स योर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। इसको 4-5 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको स्मार्ट गोल का याद आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर एक्टिविटी शीट, इसकी जरूरत नहीं है एग्जाम पर्पज के लिए। नेक्स्ट इज योर व्हाट इज गोल सेटिंग, ठीक है। गोल सेटिंग क्यों कर रहे हैं हम, गोल सेटिंग फॉर योर स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। प्लानिंग क्यों कर रहे हैं हम, फॉर अवर स्ट्रेस मैनेजमेंट। इन स्मार्ट गोल्स व्हाट डज एस स्टैंड्स फॉर, स्पेसिफिक, देन स्पेसिफिक को आपको एक्सप्लेन करना है, क्या एक्सप्लेन करेंगे आपको, यू हैव टू आस्क 6 क्वेश्चन टू योरसेल्फ फॉर स्पेसिफिक। देन व्हाट इज द बेस्ट वे टू वर्क ऑन द लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स को हमें क्या करना है, ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉलर पार्ट, अचीवेबल पार्ट, दैट इज हाउ वी कैन वर्क, ठीक है। नेक्स्ट इज 5th सेशन, लास्ट सेशन, सेल्फ रेगुलेशन और योर टाइम मैनेजमेंट। तो ये टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, लेट अस सी हाउ टू डू दैट टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हाँ, टाइम मैनेजमेंट इज अ थिंकिंग स्किल्स दैट हेल्प्स यू टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम, ठीक है। क्यों हेल्प करेगा टाइम मैनेजमेंट, तो ये लिखना पड़ेगा आपको, टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम, मेक डेली टाइम टेबल, ठीक है, देन मेक अ गुड गेस एट हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू डू समथिंग, सबमिट होमवर्क एंड असाइनमेंट ऑन टाइम, नॉट टू वेस्ट टाइम ड्यूरिंग द डे, okay. Now 4 steps for effective time management, organize, prioritize, control, track, ठीक है, organize, prioritize, control, track, ठीक है। 4 steps for effective time management, ठीक। अब ये जो इसमें चीजें रहती हैं, इसमें एक ही चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिस पर क्वेश्चन आते हैं, टू डू लिस्ट, एंड टू डू लिस्ट इज योर स्टेप 2 ऑफ टाइम मैनेजमेंट, स्टेप 2 ऑफ टाइम मैनेजमेंट, टू डू लिस्ट, ठीक है। मैं पूरा आपको एग्जाम पर्पज से बता रही हूँ कि कैसे आएगा, ठीक है। तो प्रायोरिटाइज मीन्स योर टू डू लिस्ट, ठीक है। वी मेक, यहाँ देखो पढ़ो एक बार, organize, we plan our day-to-day activities, we make a timetable, keep our surroundings study table clean, put the things back, save our time, to do list करना है हमें, list बनाना है। Then step 3 is your control over the activities and the time, avoid time wasters like you're chatting on the phone, surfing, gossiping, and most important the reels nowadays, ठीक है। Then your track, so we identify and note where we have to spend our time, ठीक है। So this is your time management के लिए। हाँ यहाँ देखो कितना अच्छा दिया हुआ, डेवलप अ नो डिस्टर्बेंस जोन वेयर यू कैन सिट एंड कंप्लीट इम्पोर्टेंट टास्क, यू हैव टू मेक नो डिस्टर्बेंस जोन फॉर योरसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट इज योर, दिस इज अगेन एक्टिविटी शीट, लास्ट में दिया है व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट, हाउ कैन यू मैनेज योर टाइम, तो यहाँ पर आंसर देना पड़ेगा आपका, टाइम मैनेजमेंट मीन्स योर मैनेजिंग योर टाइम फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, देन हाउ टू मैनेज टाइम, तो 4 स्टेप्स आर देयर, ऑर्गेनाइज, देन योर, ये देखो ये वाले आंसर देना पड़ेगा, ऐसे मन से कुछ भी नहीं लिखना है आपको, यू हैव टू राइट ऑर्गेनाइज,
प्रायोरिटाइज, कंट्रोल, ट्रैक। ठीक है, 4 पॉइंट्स पर आंसर आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं हम। ओके, सो यस, डिफाइन टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, लिस्ट द स्टेप्स फॉर मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली। 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं? ऑर्गेनाइज, प्रायोरिटाइज, कंट्रोल एंड ट्रैक। ठीक है, कौन कौन से आपके 4 स्टेप्स हैं? ऑर्गेनाइज, देन योर प्रायोरिटाइज, देन योर कंट्रोल एंड ट्रैक। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो। थैंक यू वेरी मच।